So the first topic that we are going to take in this is glacier erosion. Okay. Hello, ma'am. This is our first class, ma'am, on geography. I'm not getting your voice properly. Ma'am, it is the first class of our in geography, ma'am. Okay, this is your first class. Okay, so see whatever we did जो पिछली बार जो हम लोगों ने किया है that I will repeat for you, but try to catch from this place. Okay, so it's a very fresh topic that we have taken today, and I hope it will be very clear. Okay. Thank you, ma'am. So we have to see this one, and the first of all, we will see about the glacier. See, the erosional work of the glacier is accomplished through the mechanism of abrasion and plucking. It uses two types of mechanism. Okay. That is. Ma'am, we have to write, na, ma'am. Yeah, hello. We have to write this, ma'am. Our book. If you want, you can write. Yeah, Okay. sure, you can write it. Okay. So it follows the two mechanism. That is, the first is abrasion. That's abrasion, and second, that is plucking. So tell me, how many of you are appearing this year in exam prelims? Any one of you? Yeah, waiting for your reply. Any of you are appearing this year? No one. Okay, that's good. I thought to give you some tips if you are appearing for this year. But if not, some other day. See, so the two mechanism is, the first is abrasion and the second is plucking. Pure ice, ऐसा कहा जाता है that pure ice mass is geomorphologically inactive, but when coarse debris is carried by the glacier at its base, it becomes active agent of erosion. कैसे? क्योंकि जब भी pure ice होता है, look, pure ice can melt. Don't write this one. Pure ice can melt. Plus, it is not so energetic. So it is not energetic, and plus it is soft. So it does not have the power to erode at a long extent. मतलब बहुत ज़्यादा erosion इससे नहीं हो सकता है, because it can melt plus it is soft. लेकिन when coarse debris is carried by the glacier at its base, लेकिन जब इसी glacier के साथ suppose it's, मैंने यूं बना दिया था, it's a ice that is coming down, but it is also having the coarse debris. तो क्या होगा, इसके जो इरोड करने का जो प्रोसेस है वो काफी बढ़ जाएगा, because these are the tools of erosion. Thus, the glacier erodes its base and sidewall with the help of tool of erosion, and that is coarse debris, through the mechanism of the abrasion that I told you here. See, when the large particle, you can say the large particle or the well-jointed rocks, when they are detached by the moving glacier ice, this mechanism is called the plucking. The second one, that is called the
plucking. Now we will see some of the landforms. The first is U-shaped valley. See, it is believed that keep this one and keep this one. They see the modified pre-existing river valley through the mechanism of vibration and plucking, and thus they transform into U-shaped valley. ऐसा कहा जाता है कि U-shaped valley कैसे बनी? पहले से ही एक pre-existing valley होती है, जब वो through the mechanism of abrasion, जब वो जो ग्लेशियर जो इरोजन होता है, जब वो उससे इरोड होती है, तो वो क्या बनाती है? U-shaped valley. लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये जो है सिर्फ ग्लेशियर, अकेला जो ग्लेशियर है वो इरोड करके इसको बनाता है यू-शेप वैली को। लेकिन इट इज फाउंड दैट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर के पास इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो इतना बड़ा एक यू शेप वैली, जो कि डेफिनेटली बहुत बड़ा होता है, उसको बना सके। तो पहले इसको ये माना गया कि पहले से ही एक प्री एग्जिस्टिंग वैली होती है, जिसको एब्रेशन के थ्रू, जब ये एब्रेशन होता है ग्लेशियर के थ्रू, तो ये फॉर्म होती है। ओके, is a rough sketch so that you can understand well. This one is main valley, and this one is hanging valley. These are the step wall. तो ये भी कैसे बनता है? ये भी ग्लेशियर की इरोजन की वजह से बनता है, लेकिन ये थोड़ा कम इरोड होता है। और ये मेन वैली, जब यहाँ पे जो आइस डिफॉर्म होता है, आई मीन जब आइस मेल्ट होता है, तो क्या होता है यहाँ पे? ये वाटरफॉल बना देता है यहाँ पे, लाइक दिस। Yes, anyone, anything you want to ask? So after deglaciation, the meltwater of Hanging Valley makes a waterfall. Third is cirque. So this one is armchair shaped, as you can see. This one, this is the figure of cirque. So this is an armchair shaped, or you can say horseshoe shaped. Okay, step wall depression. ये जो wall होते हैं, ये जो होते हैं काफी step होते हैं, और ये जो होता है ये नीचे होता है. I mean this way, this way, this way, in this figure. Cirque are variously named in different countries. Like इसको CWM बोलते हैं in Wales, Corries in Scotland, and Bod in Norway. तो इसको different नाम से भी बोला जाता है. After deglaciation क्या होता है? The Cirque basin may
form a lake, sorry, it's we form a lake if water collects in it. अगर water वहां पे collect हो जाता है तो it may can form a lake. The fourth one is Nunatak, the higher peak and mount that is surrounded by ice from all the sides. This is called the Nunatak. It is just like this. See, this one is the picture. ये क्या दिख रहा है? एक हाईएस्ट पीक की तरह है, हाईएस्ट पीक और माउंट दैट इज सराउंडेड बाय आइस फ्रॉम ऑल साइड. इसके चारों तरफ क्या होता है? ये आइस से सराउंडेड होता है एंड इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल आइलैंड जो आइस से उभरता हुआ दिखता है. इट्स अ काइंड ऑफ दैट. तो इसको इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? इसको ग्लेशियर आइलैंड भी बोला जाता है. दिस वन इज आल्सो नोन एज ग्लेशियर आइलैंड. The fifth is, Excuse me, ma'am. yes, Ma'am, can you please repeat the fourth one? Glacier Islands again. you want me to repeat this one? Okay. Yes, ma'am. ये देखो, ये क्या होता है ना, ये एक पीक की तरह, यहाँ पे देखो ये एक उभरता हुआ कुछ स्ट्रक्चर है, पीक की तरह है ये. ओके, इट्स जस्ट लाइक अ पीक और यू कैन से द माउंट दैट इज सराउंडेड बाय आइस फ्रॉम ऑल साइड. इस ये चारों तरफ से ये उभरता हुआ नजर आएगा. ये चारों तरफ से सोचो इधर आइस ही आइस होते हैं, ठीक है. सो दीज आर सराउंडेड बाय द आइस फ्रॉम ऑल द साइड एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द नूनाटक. दिस वन. Okay, ma'am. ओके तो ये ऐसा लगता है ना, जब मान लिया कि सपोज कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. चारों तरफ वाटर होता है और इससे थोड़ा सा मास ऑफ लैंड निकल के आता है, तो ये क्या बन जाता है? टेल मी. तो ये क्या हुआ? Island. या दैट इज नोन एज आइलैंड. इसे आइलैंड बोलते हैं, ठीक है. तो ये क्यों है आइलैंड? इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चारों तरफ सराउंडेड बाय वाटर होता है और थोड़ा सा पीस ऑफ लैंड, चाहे वो थोड़ा हो या बड़ा हो, अगर वो चारों तरफ पानी से सराउंडेड है और बीच में लैंड मास है, दैट इज द आइलैंड. तो इसका भी कुछ वैसे ही मैकेनिज्म है. यहाँ पे पानी ना हो के ये क्या होता है? बर्फ होते हैं चारों तरफ. यहाँ पे बर्फ होते हैं चारों तरफ. और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पीक की तरह आउट होता है, दैट इज कॉल्ड नूनाटा. I hope it's clear. Yes, ma'am. Understood. Okay. So now we see the crag and tail. तो ये जो लैंडफॉर्म होते हैं ना, these are developed over the old volcanic or basaltic plugs which project above the ground surface as resistant node. ग्राउंड सरफेस से ये ऊपर दिखते हैं. ओके. So the side facing the direction where from which the ice comes becomes steep due to erosion. Let me make one diagram. Let's just again till. ये जो पार्ट हो गया इधर का, ये हो गया till. And this one is crag. इसका फ्लो डायरेक्शन ग्लेशियर का इस साइड से, फ्रॉम दिस साइड. फ्लो डायरेक्शन. तो इधर से जब ग्लेशियर फ्लो करता है, ये फ्लो डायरेक्शन है ग्लेशियर का, यानी ग्लेशियर इधर से आ रहा है. जब ये इधर से आता है, इसकी एनर्जी ज्यादा लगती है, ये ज्यादा इरोड होता है और ये स्टिप हो जाता है लाइक दिस. ओके. और यहाँ पे आके ही जब इसकी ये फ्लो डायरेक्शन, और जब ये इधर क्या होता है, इधर ये ज्यादा स्टिप नहीं होता है बल्कि
बहुत कम, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एज यू कैन सी हियर। तो ये क्या हो गया, ये टेल हो गया, इसको टेल बोलते हैं और इसको क्रैक बोलते हैं। See, once again, I'm repeating, the side that face the direction from which the ice comes becomes steep due to erosion, and this one is called the crack. और जबकि ये जो opposite side है, that sheltered by glacier ice, that become gentle slope and appear like a pen. See, the moraines are made up of a piece of rock. These are made up of pieces of rocks that are shattered by frost action. When this one is embedded in the glacier and brought down by the valley, what happened? See, two moraine are made up of the piece of rock. ये छोटी छोटी pieces of जो rock होते हैं उससे बना हुआ होता है। और जब ये ग्लेशियर के साथ नीचे आता है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स, जब ये नीचे आता है ब्रॉट डाउन द वैली, और जब ये साइड में, ये देखो ये नीचे आ रहा है सपोज, और जब ये साइड में रखता है, आई मीन व्हेन इट सेटल डाउन इन दिस साइड, सो दिस वन व्हाट दिस इज नोन एज, सो दिस वन इज नोन एज द लेटरल मोरैन. ये जो साइड में यहाँ पे आके लगा इसको बोलते हैं लैटरल मोरैन, ये भी वही है, दिस इज आल्सो लैटरल मोरैन. बट जब दो ग्लेशियर कन्वर्ज करते, व्हेन टू ग्लेशियर कन्वर्जेस दिस साइड लैटरल मोरैन यूनाइट. यहाँ पे देखो लाइक ये एक यहाँ से आया, एक इधर से फ्लो होता हुआ आया और दूसरा इधर से फ्लो होता हुआ आया. दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड. अब यहाँ पे आके क्या हुआ, ये दोनों कन्वर्ज करते हैं, हियर दे आर कन्वर्जिंग. और इसकी जो लैटरल मोरैन है, इसकी जो लैटरल मोरैन है, ये दीज आर यूनाइटिंग हियर. ओके, तो जब ये यूनाइट कर रहे हैं, व्हाट दे फॉर्म medial moraine. Okay, I hope this one is clear. See now what? Okay, the rock fragments which are dragged along beneath the frozen ice are dropped when the glacier melts and is sprayed across the floor of the valley.
एज ग्राउंड मोरन। अब क्या होता है कि द रॉक फ्रेगमेंट्स जो कि ड्रैग करते हुए यहाँ से आ रहे हैं विद द ग्लेशियर, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, जब बर्फ जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, तो क्या होता है वो सिर्फ मोरैन बच जाता है एंड दे स्प्रेड लाइक दिस ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर ऑफ द वैली एज ग्राउंड मोरैन। तो उसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड मोरैन बोलेंगे। एंड द ग्लेशियर इवेंचुअली मेल्ट ऑन रीचिंग द फुट। ये तो एक तरीके से मेल्ट हो जाता है जब ऊपर, लेकिन एक फुट पे पहुंचने पे, सपोज कि ये मानो ये फुट है और ये यहाँ तक आके जब ये मेल्ट होता है और उसके बाद जो सारे मोरैन बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको टर्मिनल मोरैन बोलते हैं या एंड मोरैन बोलते हैं। टर्मिनल और एंड, और एंड मोरैन। ओके, तो ये जो साइड वाला जो यहाँ पे डिपॉजिट होता आता है उसकी, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलेंगे हम लेटरल मोराइन। जब ये दोनों साइड से व्हेन वेरी फर्स्ट और द सेकंड साइड से जब आके यहाँ पे ये दोनों लेटरल मोराइन जब दे यूनाइट टुगेदर, दे कन्वर्ज टुगेदर, दैट इज नोन एज द median moraine। एंड एट द लास्ट when they are left without the ice, मतलब सारे मेल्ट हो चुके होते हैं ग्लेशियर at the foot, at the foot, so what is known as, so they are known as the left one, the left moraine is known as the terminal or end moraine. I think this diagram is clear. Okay, so these are all about glacier. मैम हाँ बोलो। मैम ground moraine is also same as terminal moraine है ना? नहीं देखो, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ ना, ये फुट पे आ गया। अब ग्लेशियर मेल्ट कब करे ये तो खुदा जाने कब करेगा वो, लेकिन यहाँ पे क्या Okay. है ना कि देखो ये जो आ गया टर्मिनल और एंड, क्या होता है यहाँ पे ये फुट पे आ गया, ये एंड पे आ गया, फुट पे आके जब ये मेल्ट हुआ, ठीक है, तो Okay. इसको टर्मिनल या एंड एंड कहते हैं। लेकिन अगर ये फुट पे आने से पहले ही मेल्ट हो जाता है, ठीक है, ज्यादा Oh, गर्मी पड़ जाती है got it. या फिर टेम्परेचर की वजह से, तो क्या होता है, हाँ, अगर वो वहां पे हो गया और ग्राउंड पे ही बिखर गया, तो ग्राउंड पे ही वो बिखर रहेगा ना मोरेन, क्योंकि वो तो Okay. अब इरोजन प्रोसेस हो नहीं रहा है, वो नीचे आ नहीं रहा है, तो क्या हुआ, वो Okay. ग्राउंड मोरेन हो गया। तो ये डिफरेंस हुआ, ये मेन फुट पे आने Okay. पे, लास्ट एंड पे आने पे, तो ये टर्मिनल Okay. एंड मोरेन। आई होप इज क्लियर। Yes, ma'am. ओके, ठीक है, चलो। So we are done with our erosion, that is glacier one. Now we will see marine. कुछ और भी है दो चार, if you want to see, look at in the book, I think you will get it, और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर I'm here to help. Which book, ma'am? You don't know book? Read the NCERT book, JC Leong. You don't have अच्छा. idea about the But books? no, No. ma'am. No, ma'am. It was means for many students. It was the first class only. Yes, ma'am. ये मुझे समझ We नहीं आया all. आपने Yes, क्या बोला, ma'am. स्लो बोलो Yes, थोड़ा। ma'am. नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, प्लीज प्लीज स्लोली स्लोली एक करके बोलो, मुझे नहीं समझ आया आप क्या बोल रहे हो। Ma'am, actually, most of us are attending this geography for first time, ma'am. So don't know about, we know our syllabus ओके, because it is there in the notification, but how to read, what are the books we have to see follow, what are we the, don't know, ma'am. okay, so I'm telling you what are the books that you need to follow. You have to follow only NCERTs. See for geography, GS का तो सिलेबस बहुत ही कम है, ज्यादा पैनिक नहीं करना है। जो 11th-12th की बुक होती है उसको आप लोग कर लो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। सिलेबस पीछे देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारे टिक लगाते जाओ, वो सारी चीजें करते जाओ। प्लस एक बुक आती है, जीसी ल्योंग की बुक आती है ऑरेंज कलर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसका जो पीछे का चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक वेदर, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, ये सारा कर लो। ओशियन, आइलैंड एंड कोरल लीफ मिलेगा, एरिड डेजर्ट लैंड फॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, इसको कर लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और एक मैप जरूर अपने साथ रखना, वट एवर यू फाइंड एटलस, आई मीन टू से एटलस, तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए एटलस में देख लेना। प्लस ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स हो गए, मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हो गई, कहाँ पे क्या है, लाइक मेडिटेरियन सी है, ब्लैक सी है, डिजिबूटी कहाँ है, वो मैप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इंडिया जो है वो इंडिया की जो सराउंडिंग चीजें हैं उसको देख लो, अंडमान निकोबार कहाँ पे है, मलेशिया कहाँ पे, दीज आर ऑल थिंग बहुत अच्छे से पता होना चाहिए मैप पे। ओके ओके मैम। ठीक है। और लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते उनको, क्योंकि 6 to 10 पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो 6 to 10 मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें इसमें है। लाइक 10th अभी आप जो पढ़ोगे 11th 12th की सारी चीजें, फिर मुझे लगता है कि आप अगर पीछे जाओगे तो टाइम वेस्ट ना हो जाए। उस कंडीशन में यू गो व्हेन यू फाइंड इट problematic to understand to this book. If you find problem in understanding, you can just go and read all those books of smaller classes. But अगर problem नहीं आ रही है, then avoid it. Okay. Yes Okay. ma'am. Now we will. So now we will see the coastal. मैम आप हमें नोट्स भी प्रोवाइड करोगे? और देखो in the end में I can. ठीक है, बट सी देखो जो भी मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पे बहुत क्लियरली, यहाँ पे I'm just like a blackboard in a class, right? That's giving a feel of a classroom blackboard. Is it not giving? तो यस मैम। जैसे हाँ, तो जैसे आप लोग सारी चीजें उतारते जाते हो ब्लैक बोर्ड से, वैसे क्या करो यहाँ पे पढ़ते हो थोड़ी सी मेहनत करो, ट्राई टू नोट इट डाउन, ये आपके लिए बहुत इजी होगा। क्योंकि बस पता है जो बेसिक चीजें समझ जाओगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझ जाओ, बहुत ऐसा नहीं है यूपीएससी की बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है। यू ओनली नीड टू नो द बेसिक थिंग्स, इफ यू विल अंडरस्टैंड दैट होल थिंग वेरी नाइसली, यू बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम वेरी नाइसली, और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस ये काम करते जाओ कि जो थोड़ी थोड़ी चीजें मैं बताती जाती हूँ उसको थोड़ा थोड़ा नोट करते जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आई टोल्ड यू कि गूगल बहुत अच्छी जगह है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पे देख सकते हो, आपकी बुक्स में एवरीथिंग है। फिर आपके पास तो टीचर्स भी है, यू कैन आस्क एनी टाइम। यस Ma'am, मैम। हाँ, ma'am, now you are continuing class 11 fundamentals of physical geography, na ma'am. yes, that's the fundamental of physical geography. I'm Okay, dealing with geomorphology, okay, and later on okay. I will carry with Indian geography. Physical environment. Yes. Indian physical environment. Another book is there. So that we Yeah, will that, do later. Okay. So now fundamental of physical geography is continuing. Okay. yeah, Got it. yes. Okay. So we will see the coastal landform. Okay, अभी हमने glacier से सारी बनने वाले landform, we have seen all the landform that are made up by the glacial erosion. Now we will see about the coastal landform. See the erosion, जो erosive agents होते हैं of coastal area, that are the sea waves. Erosive agents of coastal areas, ये क्या होते? These are the sea waves. Sea waves. Oceanic. What are the sea waves and oceanic current? Can anyone answer? And tidal waves. You are almost done with your oceanography. सी तो यहाँ पे जो इरोसिव एजेंट्स है द कोस्टल एरिया, वो सी वेव है, ओशनिक करंट है एंड टाइडल वेव्स है। ओके, मोस्ट पावरफुल एंड इफेक्टिव कौन सा होता है? ये सी वेव होता है, ये मोस्ट पावरफुल पावरफुल और इफेक्टिव होता है। And how it is generated? Due to the friction between the wind and surface water.
जब फ्रिक्शन होता है सरफेस वाटर पे और विंड का जब फ्रिक्शन होता है, आई मीन जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड सरफेस वाटर. सी एक चीज इंफॉर्मेटिव दैट इज टुवर्ड्स द कोस्ट क्या होता है, द डेप्थ ऑफ वाटर जो होता है वो लो होता है. कोस्ट की तरफ जो डेप्थ होता है वाटर का वो लो होता है और वेब हाइट जो है वो हाई होती है एंड वेब लेंथ भी लो होता है. Now we will see what are the process and mechanism of marine erosion. Okay, first is the hydraulic action. HYDRAULIC, hydraulic action. Second is corrosion and abrasion. Third, attrition. Fourth, water pressure. So first of all, we will see here the hydraulic action. See what happened is the way they strike coastal rope with enormous energy. ये ले लो coastal rock मैंने बनाया, ठीक है? This one is coastal rock. ये पानी है. यहाँ पे क्या होता है, वेव जो है, ये जो वेव है ये आती है और इसको स्ट्राइक करती है, मतलब इस पे टक्कर करती है. ओके, आज जैसे नॉर्मल प्रेशर में देखो, नॉर्मल टाइम पे देखोगे कि जब वहां पे अगर आई मीन नियर द कोस्ट अगर एक रॉक है तो वहां पे क्या होता है, वेव आता है उसको हिट करता है फिर पीछे जाता है, फिर आता है फिर उसको हिट करता है फिर पीछे जाता है. तो वेव स्ट्राइक द कोस्टल रॉक विद इनॉर्मस एनर्जी. तो ये जब आता है इसमें बहुत एनर्जी होती है, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि जब ये रिपीटेडली ये प्रोसेस होता है, तो क्या होता है, इसमें जो जॉइंट्स होते हैं, रॉक में जो जॉइंट्स होते हैं, जो फ्रैक्चर्स होते हैं, जो ब्रेक्स होते हैं, वो क्या होता है, उनको ये प्लग करता है, उनको ये क्वेर करता है या उनको वो प्लग करता है. द प्रोसेस नोन एज स्क्वेरिंग और प्लगिंग. तो रॉक के जो रॉक फ्रैगमेंटेड हो जाता है या ब्रेक हो जाता है. इज इट क्लियर? समझ आया ये? यस मैम. ठीक है. देखो, the rock are also weakened when waves exert enormous pressure on air taps. अब यहाँ पे सपोज ये जो छोटे छोटे होल्स होते हैं इसमें, ठीक है, जॉइंट्स होते हैं, होल तो क्या होता है, इन सारी चीजों में क्या होता है, सॉरी सारे जॉइंट्स में क्या होता है, एयर फील्ड होता है. तो क्या होता है, जब ये क्राइवेसिस, जब ये वेव आता है और यहाँ पे घुसता है, ठीक है, इसको करता है, यानी कि कुछ वेव जो वाटर है वो उसके अंदर जाता है, तो उसको क्या करता है, वो उसको प्रेस कर देता है, कंप्रेस कर देता है. ओके, और जब वो बाहर आता है तो जब ये रिलीज होता है एयर, तो फिर वो वायलेंटली ब्लो करता है, एक्सप्लोजिव की तरह वो वायलेंटली एक्ट करता है. सो दिस इज हाउ, इस तरीके से भी दिस इंटीग्रेशन होता है. नाउ सेकंड वी विल सी द abrasion or the corrosion.
See the coastal erosion by waves with the help of tool of erosion. What is the tool of erosion? That's a coarse sand, pebbles, cobbles that I told earlier. They are pebbles or the coarse sand. वो क्या होते हैं? उनको क्या बोला जाता है? Tool of erosion, क्योंकि इनकी help से ही erosion process होता है. तो coastal erosion by waves with the help of tools of erosion. तो वो क्या हुआ? वो उसके अंदर में आ जाता है abrasion and corrosion. ये क्या होता है? हर्ड अगेंस्ट द कोस्टल रॉक एंड दस द इरोड. सपोज कि ये वाटर है, ये सिर्फ वेव है, ये वेव के थ्रू ये वेव आ रहा है और बार बार स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन जब इस वेव के साथ अगर डिब्रीज आते हैं या फिर कोर्स सैंड आता है या फिर पेबल आता है और फिर ये स्ट्राइक करता है, तो इस तरीके से भी इरोजन आता है, इरोजन होता है, एंड दैट कम्स अंडर एब्रेशन एंड कोरेजन. Corrosion, that is alteration of rock because of the chemical reaction caused by sea water. ठीक है. Effective mainly on carbonate rock, that is like limestone हो गया, dolomites हो गया या chalk हो गया. They are more effective. Attrition क्या हुआ? Attrition हो गया the breakdown of the fragments due to their mutual collision. जब फ्रैगमेंट्स का म्यूचुअल कोलिशन, जब वो एक दूसरे से आकर टक्कर मारते हैं, उस वक्त जो ब्रेकडाउन होता है तो वो फ्रैगमेंट्स बन जाता है. ओके, जो ब्रेकडाउन ऑफ फ्रैगमेंट्स, आई मीन टू से कि जब ये दो चीजें टकराई तो क्या होगा? इट विल ब्रेक. दिस इज हाउ एट्रिशन वर्क. Now we will see the erosional landform. See cliffs. Erosional landform में first आता है cliff. Okay, steep rocky coast rising almost vertically above the sea water. तो वो क्या हुआ? वो cliff हो गया. अब देखो क्या होता है. ये cliff, यहाँ पे मानो ये water है, तो ये क्या होता है? कंटिन्यू इरोजन करता है. ये वाटर कंटिन्यू, वाटर आ रहा है, वेव आ रहा है, तो ये क्या करता है? यहाँ पे ये इसको इरोड करता जाता है. और ये जो मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि ये बस 5 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा. इट टेक, अभी मैंने विदरिंग पीरियड में विदिंग में बताया था कि इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको लगता है. लाइक 500 ईयर, 1000 ईयर, मोर देन दैट, 1000 मिलियन ईयर. बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स को बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है. ओके, तो ये देखो, ये जैसे आ रहा है, सपोज ये क्लिक है, तो क्या करते जा रही है? ये आ रहा है, टकरा रहा है. एज आई टोल्ड इन दिस ऑल थिंग्स हाउ इट वर्क्स. तो यहाँ पे ये इरोड होते जा रहा है. इरोड होते होते क्या हो रहा है? क्योंकि ये बेस होगा जहाँ पे वाटर है, जब वाटर इसके रिच में आएगा तभी तो वो इरोड होगा. ये वाला पोर्शन तो नहीं वाटर से इरोड होगा, क्योंकि ये वाटर के ऊपर है. तो ये जब इरोड होते होते क्या होता है कि ये देखो इस तरीके का फॉर्म बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये एक क्लिफ की तरह ऊपर दिखता है. ये जो होता है रॉक, ये क्लिफ की तरह ऊपर दिखता है, और ये अंदर 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 जाते जाता है, यानी कि इरोड होते जाते, किप्स ऑन इरोडिंग डीपर एंड डीपर एंड डीपर.
Okay, and this area, this one is known as notch because it is getting eroded by the water action. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे ये इरोड करते, अभी सपोज ये एक टाइम पे जरूर ऐसा होगा, इट मस्ट बी लाइक दिस एट अ टाइम, यहाँ पे शायद, ओके, इट मस्ट बी लाइक दिस एट अ टाइम, लेकिन ये शुरुआत हुई एंड नाउ इट कीप ऑन इरोडिंग एंड इरोडिंग, तो क्या हुआ, ये देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू दिस, इट मस्ट हैव ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, देन इट मस्ट हैव टर्न लाइक दिस, देन इट मस्ट हैव टर्न लाइक दिस, एंड नाउ इट हैव टर्न दिस वे, सो इट विल कीप ऑन, क्योंकि ये रुकता नहीं, इट विल कीप ऑन इरोडिंग, it will keep on its action going continuing, so it will keep on eroding, and this one क्या होगा, फिर एक टाइम पे ऐसा आएगा जब ये पूरा erode कर देगा and this will fail. So what we can say about the notch? What is not? Notch is cut at the base of the cliff. Base ही तो काटेगा ना ये cliff का. So notch is cut at the base of a cliff, which weaken it and it collapse later. Okay, and as the cliff moved landward due to action of the wave, an eroded base is left behind, and this is what called wave cut platform. I hope this diagram is clear. Now we will see. Cave. Arch. Stack. And stump together. See, this one is water that I'm making, this one. See how the cave, this one is the cave. The first one is the cave. इसको पूरा black कर देते हैं, okay? This one is cave. How it is formed? It formed due to the gradual erosion of weak and strongly jointed rock. जब तक rock weak नहीं होगा वो कैसे erode होगा? तो जब तक ये weak नहीं होगा तब तक ये erode नहीं होगा, और jointly अच्छे से strongly jointed rock भी होना चाहिए. Okay, joint are widened into large cavity and hollow to form coastal cave. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूअसली यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया, आई थिंक ये वाली चीजें समझ में आ गई, ऊपर वाली तो सब कुछ क्लियर है, हाउ लैंडफॉर्म इवॉल्व उससे बहुत क्लियर हो जाता है. अब यहाँ पे क्या होता है, इसलिए कंटिन्यू इरोड हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पे एक्शन हो रहा है वाटर का, तो ये हल्का हल्का इरोड होता गया और डेप्थ हो गया इसके अंदर, ये डीप हो गया और ये केव की शक्ल इसने ले ली. ओके, अब दूसरी टाइम क्या होता है, आर्च, जब टू केव कंबाइन, इधर से भी एक इरोड हो रहा है, उधर से भी ये इरोड हो रहा है, और क्या होता है, ये एक टाइम पे ट्रांसपेरेंट नहीं, आई मीन एक दूसरे, एक टाइम के बाद ये आर पार दिखने लगेगा. ओके, तो ये आर पार दिखने लगेगा और ये बिल्कुल हॉलो हो जाता है, मतलब ये जो केव था, अब जो ये जो ब्लैक वाला एरिया था ये हल्का सा इरोड हुआ था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा एरिया ही इरोड हो जाएगा और ये इधर से भी दिखाई देगा और इधर से भी दिखाएगा, मतलब ये हॉलो हो जाएगा पूरी तरीके से. तो ये क्या बन गया, आर्च, इसको कहते हैं आर्च. Now we'll see the further
how the stack is formed. Further erosion cause collapse of the arch, and see the erosion keeps on repeating because the water will keep on acting the same way. It's not just like that now it's acting and some other day it will change its course, it will act in a different way. No, it will keep on acting in the same way over the same things as it is doing. So वो जो होता है ना धीरे धीरे वो like this they transformed because of the action. So now again the erosion will take place, again the same thing or the same process will repeat. Now what will happen? अब क्या होता है कि this area, or you can see the roof, when it collapse, when it break, it turns into this way. Okay, see, suppose before there was a arch, but it collapsed, the roof collapsed and it turned into this way without a roof, just standing like a stump. So this one is known as stacks. STACKS, stacks. And now this one is known as stump. About how this one is formed? Anyone can tell me how this one formed? Waiting for your answer. Very simple. Again, the erosion process क्या होता है? That continues. When the erosion process will continues over the same thing, what will happen? This will again collapse. और ये collapse करते हुए it will take this one feature. क्योंकि देखो यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे हल्का सा कह सकते केव के तरीके से फॉर्म हुआ, then again the further erosion हुआ, फिर यहाँ पे दोनों साइड से दिखने लगा, यहाँ पे hollow हो गया, then the erosion again further continued. So वो जब कंटिन्यू हुआ तो यहाँ पे ये जो रूफ है ये ब्रेक हो जाता है and stand like this arch, sorry stack, this is known as stack. और फिर से इरोजन होता है तो क्या होता है, ये जो एरिया है इसका टूट जाता है, ये इरोड हो जाएगा, और जब इरोड हो जाएगा तो इट विल बी लेफ्ट विद दिस स्टम्प. दिस इज नोन एज स्टम्प. ठीक है, आई थिंक दिस वन इज क्लियर. Okay, my time is also over. You have to ask anything about today's class. So next time we will see the arid landform. Now we are left with arid landform, karst topography, and all that we need to do. Ma'am, Yes. just one doubt, not about the class. I have doubt that with NCERT simultaneously we should read GCLIM, or first complete the NCERT, then we will go to मुझे ना what are you saying, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपकी वॉइस उतनी क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज. Ma'am, actually I'm asking is, first of all we have to read all the NCERT book, then we have to go to GCLIM, or simultaneously we have to read? You can read over the book. GC Long is also a very important book that will give you a concept clarity. So you can read side by side. It's nothing like first of all you have to clear, complete that NCERT book, or you have to complete first GC Long. If you find the problem, you can also go with GC Long and NCERT together. You can read that. No problem in that. Okay. It's nothing like that. You have to complete one book first. Okay, ma'am. Got it. Okay. Any more problem? So today, no problem. Everybody got everything. I mean, सब कुछ समझ आ गया ना? Okay, then thank you. So ma'am, जब भी पानी आता है, yes. नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं है. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. Am I audible now? Hello. Yeah, I'm not getting your voice nicely, not properly. Yes. Am I? Hello. Hello. Am I audible now? I'm not getting you properly. हाँ पूछो. Am I audible now? Difficult to understand you. मैम कुछ पूछा ही नहीं मैंने अभी तक. मैम मैं पूछ रही थी कि जब पानी आ रहा है तो मैम जब भी ऊपर वाला स्ट्रक्चर है वही इरोड होगा, और जो अंडर होता है वाटर के वो नहीं होता है. जैसे स्टम्प्स कह रहे थे तो वो नहीं हो पाए, बस ऊपर जो स्टैक बन गया, क्या वो इरोड हुआ?
देखो मुझे कुछ बहुत वीक सा समझ आ रहा है, मुझे कंप्लीटली नहीं समझ आ रहा. व्हाट आर यू सेइंग? आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डायग्राम, राइट? यस यस मैम. हाँ तो पूछो क्या है. व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपर्ली ना, आपकी वॉइस बिल्कुल सही नहीं आ रही है. ओके. सो मैम मैं पूछ रही थी कि जब भी पानी आता है तो इट्स जस्ट द अपर स्ट्रक्चर व्हिच इज गेटिंग इरोड. सो नीचे वाले नहीं होते. फॉर एग्जांपल कि जब केव था तो नहीं ऊपर का नहीं स्ट्रक्चर. नहीं, नीचे ऊपर का देखो दियो. ये जब इरोड हो रहा है ना, जब ये इरोड हो रहा है, प्लीज अपने माइक्स ऑफ करो अगर किसी के ऑन है तो. इट्स ट्रबलिंग मी. ओके. तो देखो ये जब वाटर आए ना, कोई भी जो शेप होता है वो बड़ा हो या छोटा, वो इरोड होते होते यहाँ से इरोड होना शुरू होगा ना. शेप ये नीचे से तो नहीं इरोड होना शुरू होगा. कोई भी शेप अगर इरोड होगा दैट इज स्टार्ट फ्रॉम दिस वे, इट विल स्टार्ट इरोडिंग, देन इट विल, ये यहाँ से इतना बड़ा अगर है, देन इट विल इरोड टू दिस वन. ये इतना बड़ा है तो इट विल इरोड टू दिस वन, एंड ये स्लो स्लो प्रोसेस होके ऐसे हो जाता है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. और यू नीड टू आस्क समथिंग एल्स. नो नो, दिस वन ओनली आई वाज टॉकिंग. हाँ, हाउ द इरोजन वर्क्स, यहाँ से ना इरोड करते जाएगा. इरोजन का मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन. ठीक है. तो इरोजन कैसे होगा, डिग्रेड कैसे होगा? ये ऊपर से इरोजन होना शुरू होगा ना. सपोज कि ये मान लो कि ये वाटर आ रहा है, ठीक है, ये वाटर आ रहा है, यहाँ पे ये बार बार अटैक, यहाँ पे मैं बनाती हूँ, वेट. ये वाटर आ रहा है, यहाँ पे ये बार बार अटैक कर रहा है. ओके. अपने इरोजन टूल से, अपने वेब से, तो क्या होगा, ये डिसइंटीग्रेट होगा. यहाँ पे यहाँ के जो रॉक होता है, यहाँ का जो रॉक होगा वो वीकेंड पड़ जाएगा और फिर वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा. जब वो डिसइंटीग्रेट होगा, या तो वो इस तरीके के फॉर्म में डिसइंटीग्रेट होगा, कुछ ऐसा ऐसा होता जाएगा, ठीक है, और फिर वो एक टाइम आएगा कि ये पूरा ही खत्म हो जाएगा. ओके. फिर जब ये इतना सा लेफ्ट बच जाएगा, फिर देखो यहाँ पे ये बहुत था, फिर यहाँ पे वाटर इरोजन करना शुरू करेगा. ये अभी इतना ऊंचा था, अभी ये शॉर्ट हो गया, फिर पानी ने इरोड करना शुरू कर दिया. अब शायद वाटर का एक्शन यहाँ पे होगा, तो धीरे धीरे अब ये पोर्शन इरोड होगा. फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जैसे पानी है और ये यहाँ पे ये इरोड हुआ हुआ पोर्शन है, ऊपर में सब कुछ इरोड हो गया. ओके. ओके देन, थैंक यू एवरीवन. Thank you, ma'am. थैंक यू.